Good evening. Am I audible? Good evening, everyone. Am I audible, Yes, guys? sir. Thank you, Vaibhav. Chalo, well and good. I am here today. We have met yesterday for CSS, and today we are here for a subject AI, artificial intelligence, and for some branch it is AIDS, artificial intelligence and data science. So, well and good. The subject which I'll talk about today is again, I'll be clearing with one thing. It is not a theoretical topic. It is not a conceptual topic. ये पूरा सब्जेक्ट जो है ये एक प्रॉब्लम और ओवरऑल अगर आप देखोगे तो लॉजिक बेस के ऊपर है, ठीक है. सो लेट अस स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग ये एआई टर्म आया कैसे, व्हाट एग्जैक्टली you mean by this term AI, that is artificial intelligence. Who are the people, who are the forefathers who have defined or coined this term AI? So, chalo, let me share my screen. Please, everyone, just tell me whether the screen is visible. Is my screen visible, guys? Yes, sir. Okay, fine. So, to start with, what exactly is AI, that is artificial intelligence? uh, कोई बता सकता है AI मतलब क्या? AI का क्या मतलब है? Anyone can unmute and answer. What is the meaning of this term AI? Artificial intelligence मतलब क्या? अरे कोई तो बोलो. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब होता है अपना जो ह्यूमन इंटेलिजेंस है वो सिस्टम के अंदर एम्बेड करना, so that that system can now start acting as a human being, thinking as a human being. So when you try to impart a human brain knowledge into a system, so that that system will right now try to mimic what user can do, what human can do. तो AI is nothing but, यहाँ पे आपको definition दिखेगा. It is the simulation of human intelligence by machines, especially by the computer systems. So whenever we try to embed our human-like brain knowledge into a system, into a computer system, and make the computer system to work like a human, it is called as AI. तो यहाँ पे आपको और एक इमेज दिख रहा है, जो मैं यहाँ पे अभी पेस्ट कर रहा हूँ. There is a refrigerator which is telling the owner कि भाई घर पे ना तू जब वापस आएगा तो आते वक्त दूध लेके आ क्योंकि दूध खत्म हुआ. This is not the task of a refrigerator, but this refrigerator is AI enabled device. So AI enabled device is nothing but which tries to mimic like a human, but it is not a human. So ये जो आपको पिक्चर में दिख रहा है, रोबोट लाइक अ ह्यूमन, तो उसको क्या कहते हैं? आप सबको पता रहेगा ये टर्म, रोबोट लाइक अ ह्यूमन. उसको हम लोग क्या कहते हैं? अरे सुना रहेगा ना कुछ तो. एग्जैक्टली, श्रेयस ने बराबर आंसर है, ह्यूमनॉइड. It is a combination of
all the different technologies to make a robot work, look, think like a human. तो उसके ऊपर बहुत सारा रिसर्च चल रहा है. तो लॉजिकली अगर आप देखने जाओगे तो जो एआई है ना, एआई वो दो अप्रोचेस में काम करता है. दो अप्रोचेस में. पहला जो अप्रोच है ना, वो यहां पे मैं आपको बताता हूं. ये जो स्ट्रक्चर है, ये तुम्हारी ह्यूमन ब्रेन का स्ट्रक्चर है. और ये स्ट्रक्चर कहता है कि योर एआई बेस्ड सिस्टम जनरली एआई बेस्ड सिस्टम जनरली follows a psychological approach. ठीक है, which is an intelligent system or AI based system modeled on the human intelligence. पर ये सब करने के लिए और तुम्हारे रोबोट को सोचने के लिए we use engineering approach. ठीक है, a way that you will use to solve complex problem. So basically there are two approaches which any AI expert will tell you कि AI system बनाने के लिए we generally follow two approaches. One is called as a psychological approach and one is called as engineering approach. Psychological approach मतलब अपना human like जो knowledge है वो system में embed करना, और engineering approach मतलब how complex thing can be easily solved. So who is the person who is responsible? ये ट्रिब्यूट किसको जाता है? ट्रिब्यूट ऑफ डिफाइनिंग दिस टर्म एआई. तो ये जाता है, द ट्रिब्यूट गोज टू दिस फोर फादर्स ऑफ एआई who are responsible to coin this term AI. That is John McCarthy, Alan Turing, Allen and Herbert, and Minsky. So these are the founding fathers of the term AI. So अभी तक जो मैंने बताया आप सब लोग को समझा क्या एवरीवन? बिकॉज इसके बाद मैं थियरी पे फोकस नहीं करने वाला हूं, मैं सीधा प्रॉब्लम सॉल्विंग पे जाने वाला हूं. तो अभी तक जो मैंने बात बताई आप सब लोगों को समझा है तो जरा नोटबुक में लिखो. अच्छा एक ही सेकंड, नोटबुक में लिखने से पहले मैं आपको और एक बात बताता हूं. लेट मी टेल यू वन मोर थिंग ऑफ फॉर एआई. एआई जो है ना वो बेसिकली एआई का मेजर कंपोनेंट is this is your inference engine. और ये inference engine is connected to a set of rules. उसको हम लोग कहते हैं रूल बेस. और ये इंफरेंस इंजन कंटिन्यूअसली यूजर से इनपुट लेते रहता है या एनवायरमेंट से इनपुट लेते रहता है. तो भाई ये जो आपको दिख रहा है ना, ये दिस इज योर इनपुट. और इनपुट लेने के लिए जो कंपोनेंट ये सिस्टम यूज करता है उसको हम लोग कहते हैं सेंसर. एक बार इनपुट सेंसर से ले लिया, वो रूल बेस में जाता है. रूल बेस और इनपुट से कुछ स्टडी करता है और उससे एक आउटपुट प्रोड्यूस करता है. एक आउटपुट दे देता है. दैट इज विद द हेल्प ऑफ अ कंपोनेंट कॉल्ड एज एक्चुएटर. एक सेकेंड ना. Okay, so input is taken from sensor. Inference engine goes to the rule base, thinks कि क्या करना है for this input and gives the output. The output is presented to the real world by the actuator.
तो अगर मैं आपको बताऊं, ये जो आपको मैंने आर्किटेक्चर बताया, दिस इज योर एआई एजेंट का आर्किटेक्चर, दिस इज योर एआई एजेंट का आर्किटेक्चर। यहां पे मैं एक एग्जांपल आपको बताता हूं, उस एग्जांपल के लिए यहां पे ध्यान दो। ये ना आपका सॉइल है, अज्यूम करो। इस सॉइल के अंदर इस सॉइल के अंदर मैंने एक सेंसर डाल के रखा है, इस सॉइल के अंदर। एंड दिस इज नथिंग बट इट इज अ मॉइस्चर सेंसर। इट कैलकुलेट अमाउंट ऑफ मॉइस्चर इन द सॉइल। अच्छा, ये मॉइस्चर सेंसर सॉइल से डेटा लेता है और सॉइल से डेटा लेके जाता है इन्फरेंस इंजन के पास, और इन्फरेंस इंजन जो है ना, वो कनेक्टेड है तुम्हारे रूल बेस को। तो यहां से उसने इनपुट लिया। भाई क्या इनपुट है? इनपुट जो है ना, वो है तुम्हारा मॉइस्चर कंटेंट। इनपुट जो है ना, वो है तुम्हारा मॉइस्चर कंटेंट। इन्फरेंस इंजन में रूल लिखा हुआ है कि अगर मॉइस्चर कंटेंट 90 से ऊपर है तो पानी चालू नहीं करना है। अगर मॉइस्चर कंटेंट 80 से 90 के बीच में है तो 10% टैप ओपन करो। अगर वो 70 टू 80 के बीच में है, 20% फ्लो, मतलब और 10% वाटर फ्लो बढ़ाओ। अगर 60% पे गया है, वाटर फ्लो और बढ़ाओ। तो तुम्हारा इन्फ्लुएंस इंजन ये रूल बेस देखता है, और रूल बेस देख के वो आपको एक आउटपुट देता है, और वो जो आउटपुट जाता है, दैट आउटपुट गोस टू अ वाटर पंप। एंड वाटर पंप से ऐसा एक पाइप निकलता है, एंड ये पाइप को यहां पे ऐसा, अगर आप देखोगे, स्प्रिंकलर लगाया है। ठीक है, सो अभी क्या होगा? अभी यहां से पानी का फ्लो चालू हो जाएगा, बट फ्लो कितना आना है, कितना जाना है, दैट एंटायरली डिपेंड्स कि मॉइस्चर कंटेंट कितना है। मॉइस्चर कंटेंट बढ़ गया, ऑटोमेटिकली पानी बंद हो जाएगा। सो दिस इज योर आउटपुट, एंड आउटपुट इज वाटर फ्लो। एंड ये जो तुम्हारा वाटर पंप है ना, दिस वाटर पंप, जैसे इधर तुम्हारा सेंसर था, इनपुट, दिस वाटर पंप इज अ एक्चुएटर, एंड दैट इज योर आउटपुट, जो रियल वर्ल्ड में आउटपुट प्रेजेंट करता है। सो दिस इज वन ऑफ द एप्लीकेशंस ऑफ एआई combined with IoT. This is your automatic plant watering system. क्या ये तुम्हारा ऑटोमेटिक प्लांट वाटरिंग सिस्टम? बस आज मैं इससे ज्यादा थियरी कुछ कवर ही नहीं करूंगा, आई एम डायरेक्टली जंपिंग टू सम। बट फिलहाल जो मैंने बात किया, मैं रिक्वेस्ट करूंगा एवरीवन बी वोकल, एवरीवन बी इंटरैक्टिव। जो मैंने आपको अभी तक बताया वो समझा या बाउंसर है? समझा। सो राइट डाउन इन योर नोटबुक, राइट डाउन इन योर नोटबुक, chapter 1 introduction, chapter 1 introduction, what is AI? एक सेकेंड ना, these are approaches of AI.
This is your this is an example. Uh, AI and IoT based plant watering system. ठीक है, चलो कंप्लीट वॉट एवर यू सी ऑन योर स्क्रीन राइट नाउ, एआई का डेफिनेशन पहले लिख के ले लो. ठीक है, व्हाट इज एआई, अप्रोचेस ऑफ ए लिख के ले लो. वंस यू डू दैट यू कैन स्टार्ट राइटिंग एआई एजेंट. ये एआई का डेफिनेशन है, ये वाला जो मैं अभी मूव कर रहा हूँ वो एआई का डेफिनेशन है. उसके बाद अप्रोचेस ऑफ एआई, उसके बाद ये दो पॉइंट्स, फिर एआई एजेंट और उसका डायग्राम. कंप्लीट इट फर्स्ट. हो गया लिख के? एआई एजेंट तक हुआ सबका?
अरे भाई, हाँ यांना. I'll give you 2 more minutes, complete it. Done, sir. ओके, सो इसमें एआई एजेंट में जरा लिखो. राइट डाउन इन एआई एजेंट. As shown above, AI agent has sensor. AI agent has a sensor to take input. AI agent has a sensor to take input from the environment. To take input from the environment. To take input from the environment. ब्रैकेट में लिखो perception. ब्रैकेट में लिखो perception. Next point. The inference engine, which is the controller. The inference engine, which is the controller, gives decision based on the input received and rules referred from rule base. And rules referred from rule base. Referred from rule base. Next point. The output is presented to the environment. Output is presented to the environment using actuator. Presented to the environment using actuator. Using actuator. For example,
ये एग्जाम्पल लिखो और ये डायग्राम ड्रॉ करो। Tell me once you complete so that I can start with sums. But sums के लिए मुझे आपसे इक्वल रिस्पॉन्स लगेगा, सन्नाटा नहीं चलेगा। डन सर। Yes. चलो, everyone in your notebook write down problem solving. Everyone in your notebook give the heading as problem solving. ठीक है। एआई का बेसिक एम होता है कोई भी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करना, कोई भी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम हो उसको सॉल्व करना। तो जनरली प्रॉब्लम सॉल्विंग में क्या होता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग में देयर इज अ स्टेप कि सबसे पहला स्टेप होता है कि भाई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द इनिशियल स्टेट, कि कहां से मुझे चालू करना है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, मेनी अ टाइम यू विल सी IS, सो IS इज अ initial state. Your second step for problem solving is goal state, कि कहां जाके मुझे रुकना है, उसको हम लोग कहते हैं गोल स्टेट। तीसरा स्टेप कोई भी प्रॉब्लम सॉल्विंग में अगर आप देखोगे तो होता है एक्शन एंड रूल्स डेफिनेशन। ये तुम्हारा थर्ड स्टेप होता है कि व्हाट आर द पॉसिबल सेट ऑफ एक्शंस एंड रूल्स, एंड फाइनली what you get is solution tree. कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करना है यू जनरली फॉलो दिस स्ट्रक्चर। ठीक है, मेनी अ टाइम यू मे हैव टू राइट द स्टेट डिस्क्रिप्शन ऑल्सो। द स्टेट डिस्क्रिप्शन की प्रॉब्लम स्टेटमेंट दिया है वो क्या बताने की कोशिश कर रहा है। सो भाई प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या है, प्रॉब्लम सॉल्विंग इज अ मेथड, तो मैं यहां पे लिखता हूं मेथड टू reach to the goal state, that is actually called as
problem solving method to reach to the goal state, starting from initial state. Starting from initial state. Method to reach to the goal state starting from initial state is called as problem solving. Basically उसके ये 4 steps होते हैं. इनिशियल स्टेट क्या है ये जानो, गोल स्टेट क्या है ये जानो, गोल स्टेट इनिशियल टू गोल स्टेट जाने के लिए क्या क्या एक्शंस हम परफॉर्म कर सकते हैं ये जानो, एंड फाइनली व्हाट इज द सॉल्यूशन ट्री. तो चलो ये इसके लिए ना मैं ये हम लोग बाद में लिख के ले लेंगे, बट इसके लिए मैं एक प्रॉब्लम आपके सामने रख देता हूं. मैं एक प्रॉब्लम आपके सामने रख देता हूं. ठीक है, चलो आई राइट क्वेश्चन नंबर 1. इट इज कॉल्ड एज 8 puzzle problem. हम लोग इसको कहते हैं 8 puzzle problem, sometime also called as 8 tile problem. अपने को यहाँ पे क्या करना है, 8 puzzle problem कहता है कि आपको एक इनिशियल स्टेट दिया हुआ है और वो इनिशियल स्टेट कुछ ऐसा है, और आपको एक गोल स्टेट दिया हुआ है और जो गोल स्टेट है ना वो कुछ ऐसा है. सो इनिशियल स्टेट में दिया हुआ है यहाँ पे 1 2 8 3 4 5, इधर दिया हुआ है 7. ये जो है ना दिस इज योर टाइल, एंड इधर दिया हुआ है 6. ठीक है, इनिशियल स्टेट में, सॉरी उल्टा है. यहाँ पे दिया हुआ है 6 और यहाँ पे है टाइल, बट गोल स्टेट में दिस इज 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड दिस इज योर टाइल. Assume this tile as number 9. Only tile is also fine. अभी क्या बोला है कि solve from initial state, solve to get solution for reaching goal state from initial state. और यहां पे ना एक चीज ऑलरेडी जान लो, यहां पे लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है वो जो टाइल है ना 9 वाला टाइल, तो यहां पे एनी स्क्वायर और टाइल कैन बी मूव्ड, ब्रैकेट में मतलब वो स्वैप होगा, स्वैप्ड इन ऊपर, राइट में, नीचे या लेफ्ट में. ओनली ये 4 पॉसिबल, ओनली ये 4 पॉसिबल ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है. ये 4 पॉसिबल ऑप्शंस. सो कैन यू राइट नाउ हेल्प मी, कैन यू राइट नाउ हेल्प मी कि अगर मुझे इनिशियल स्टेट से गोल स्टेट पे जाना है, तो चलो अपने को ना फर्स्ट एंड सेकंड स्टेप ऑलरेडी दिया हुआ है, तो अभी हम लोग सीधा सॉल्यूशन चालू करते हैं. एंड नाउ यू टेल मी, इफ आई स्टार्ट द सॉल्यूशन, व्हाट आर द पॉसिबल एक्शंस आई कैन परफॉर्म. आई कैन लॉजिकली परफॉर्म, मैं यहां पे लिखता हूं एक्शंस एंड रूल्स, क्योंकि इनिशियल स्टेट गोल स्टेट ऑलरेडी दिया हुआ है. तो मेरे पास पहला एक्शन है विच सेज मूव टॉप. मेरे पास दूसरा एक्शन है विच सेज मूव बॉटम. मेरे पास तीसरा एक्शन है विच सेज मूव लेफ्ट. मेरे पास चौथा एक्शन है विच सेज मूव राइट. भाई मेरे पास सिर्फ ये 4 ऑप्शंस है.
मैं इधर लेफ्ट जा सकता हूं, मैं राइट जा सकता हूं, मैं ऊपर जा सकता हूं, या मैं नीचे आ सकता हूं। सिर्फ ये 4 पॉसिबल ऑप्शंस मेरे पास है। Either you write A1, A2, A3, A4, or you can also write R1, R2, R3, R4. Actions and rules. अच्छा, टेल मी, ये देख के जरा मुझे बताओ, व्हाट आर द नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखा है एक्शन एंड रूल्स के बाद? सोल्यूशन ट्री। तो मैं यहाँ पे, ये मेरा फर्स्ट स्टेप है, क्योंकि मेरे फर्स्ट 2 स्टेप ऑलरेडी दिए हुए हैं, इनिशियल स्टेट एंड गोल स्टेट। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ। अच्छा, मैं यहाँ पे जाता हूँ और मैं इनिशियल स्टेट वापस ड्रॉ करता हूँ। तो इनिशियल स्टेट में क्या दिया हुआ है, क्विकली टेल मी। इधर क्या आएगा? इधर आएगा 1 2 8 3 4 5 टाइल 7 6। अच्छा, कैन यू टेल मी लुकिंग एट दिस, कौन से टाइल्स अपने ओरिजिनल पोजीशन पे है? प्लीज अनम्यूट एंड आंसर। कौन से टाइल अपने ओरिजिनल पोजीशन पे है? 3 4 5 7। 3 4 5 7 मतलब 3 4 5 7 को दोस्तों हाथ नहीं लगाने का, ना उसको किधर शिफ्ट करने का, ना किधर से स्वैप करने का, बिकॉज दे आर इन राइट प्लेस। तो अभी मैं क्या करूं? तो अभी ये जो टाइल है ना, टाइल अपने को जो करने, वो टाइल को ही घुमा सकते हो। वो टाइल के साथ ही पूरा गेम खेलना है अपने को। तो अभी मैं एक काम करता हूं, मुझे बात बताओ, टाइल को मैं कहां मूव कर सकता हूं? टाइल मतलब कौन सा है? टाइल इज द वन विच इज ब्लैंक। तो मेरे पास क्या क्या पॉसिबल एक्शन है बताओ। मैं टाइल को इधर लेफ्ट में लेके जा सकता हूं या राइट में लेके जा सकता हूं, बट यू टेल मी, लेफ्ट में लेके गया तो 7 के साथ स्वैपिंग होगा, राइट में लेके गया तो 5 के साथ स्वैपिंग होगा। आई डोंट हैव एनी ऑप्शन टू गो डाउन, आई हैव ओनली वन ऑप्शन टू गो अप। सो कैन यू टेल मी, यहाँ पे मैं अभी कौन सा रूल अप्लाई करूं? यू टेल मी, अनम्यूट एंड आंसर फास्ट। A1, A1, A2, A3, A4, A1, A1 या R1, आपको जो लिखना है लिख सकते हो। ठीक है, चलो, कैन यू टेल मी इसका आउटकम क्या होगा दोस्तों? अच्छा, ये मेरा स्टेप 2 है। हाँ, ये मेरा स्टेप 2। व्हाट इज स्टेप नंबर 2? सोल्यूशन ट्री। सोल्यूशन ट्री। अच्छा, कैन यू टेल मी व्हाट इज द आउटकम ऑफ दिस मूवमेंट? आपको यहाँ पे मिलेगा 1 2 8 3 4 5, इधर आएगा 6 7 एंड टाइम। नाउ कैन यू टेल मी विच ऑल आर इन प्लेस? 3 4 5 6 7। परफेक्ट आंसर। 3 4 5 6 7 मतलब मुझे इन चारों को, इन पांचों को हाथ नहीं लगाना है। लॉजिकली मेरा टाइल भी प्लेस में है, बट मेरा जो भी मूवमेंट होगा इट विल बी विथ रिस्पेक्ट टू टाइल। तो अभी मुझे टाइल के साथ ही खेलना है। तो नाउ यू टेल मी, अभी टाइल अगर देखोगे, व्हाट आर द पॉसिबल ऑप्शंस यू कैन मूव योर टाइल? कैन यू मूव टू राइट? no, राइट में मूव कर सकते हो, अरे पर Yes, करके sir. फायदा नहीं है, Yes. क्योंकि अगर मैंने राइट में मूव किया तो 4 हिल जाएगा। 4 तो बराबर ही है अपने जगह पे। कैन आई मूव इट टू बॉटम? no, No, sir, नो, 6 बिकॉज हिल मैं जाएगा। बॉटम से तो आया अभी। तो नाउ आई कैन मूव इधर टू टॉप और आई कैन मूव टू left, लेफ्ट। left, आप कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हो। मैं उसको टॉप में लेके जाता हूं। अगर आप लेफ्ट में भी लेके गए फिर भी बराबर है। तो यहाँ पे कैन यू टेल मी, टॉप पे लेके जाना है तो मेरा वापस बनेगा एक्शन नंबर 1। एंड नाउ एक्शन नंबर 1 बनने के बाद कैन यू हेल्प मी टू ड्रॉ कि व्हाट विल बी माय नेक्स्ट स्टेट? क्या हो जाएगा अभी? 1 2 टाइल Tile 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 और 8। इधर 8। अच्छा, अभी टाइल इधर ऊपर जा सकता है, जो पॉसिबल है नहीं। राइट में गया तो 3 को हिला देगा, और नीचे जा नहीं सकता क्योंकि नीचे से तो ऊपर आया अभी वो। तो अभी मेरे पास दोस्तों एक ही ऑप्शन बचता है। कैन यू टेल मी कौन सा ऑप्शन बचता है? left, Two, A3, लेफ्ट में जाना। बराबर। तो लेफ्ट में जाने के लिए मैं कौन सा रूल यूज करूंगा? मैं यूज करूंगा A3, रूल नंबर 3।
तो अभी मैं लेफ्ट में चले जाऊंगा, तो कैन यू टेल मी मेरा स्ट्रक्चर में क्या दिखेगा आपको? क्विकली टेल मी। टाइल One, टाइल 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 1 8, 8. ऐसा कुछ दिखेगा? yes, Yes, sir. अच्छा, कैन यू टेल मी दिस इज ड्यू टू रूल नंबर A3, 3. मतलब मैं लेफ्ट में चले गया। अच्छा, अभी मुझे बात बताओ, मेरा टाइल अभी अभी आप अगर देखोगे 2 अपनी जगह पे आ गए, 3 4 5 6 7 अपनी जगह पे पहले से ही था। तो अभी मुझे जो कुछ भी करना है वो 3 पोजीशंस पे खेलना है। तो मुझे बात बताओ, कैन आई मेक माई टाइल गो टू अप? No, sir. Not नो। possible. बॉटम, Yes, Yes, sir. लेफ्ट, not possible. No, sir. राइट। Right से आए हैं. Right राइट से आया तो वापस किधर? राइट में लेके जाएगा। तो मेरे पास भाई एक ही ऑप्शन बचता है कि A2. टाइल को नीचे लेके जाओ। तो टाइल को नीचे लेके जाने के लिए रूल नंबर A2 यूज करूंगा मैं। और रूल नंबर A2 जब मैं यूज करूंगा तो यहाँ पे ध्यान दो, क्या क्या आ जाएगा जरा बताओ मुझे। 1 2 3 4 1 5 2 3 4 5 6 7 टाइल टाइल और 8, बराबर ना? इतना समझा ना रे? Yes, Yes, sir. sir. क्लियर? अभी मुझे बात बताओ, व्हाट आर द पॉसिबल ऑपरेशन फॉर टाइल? ऊपर लेके गया नहीं चलेगा क्योंकि ऊपर से ही आया। लेफ्ट में मैं जा नहीं सकता हूं। नीचे के लेके गया तो 7 हिल जाएगा, 7 ऑलरेडी इन प्लेस है। तो अभी मेरे पास एक ही चीज बचता है और वो है राइट में लेके जाओ, रूल नंबर 4। A4. और अभी रूल नंबर 4 अप्लाई करने के बाद यहाँ पे जो मुझे फाइनली दिखेगा, कैन यू टेल मी वो क्या रहेगा? Gold 1 state. 2 Gold state. 3 4 Uh, 5 6 7 8, and this is your tile, and this is your goal state. Once you reach the goal state, you will stop and you will start from the initial state. बट अगर आप देखोगे, वॉट एवर रूल्स एक्शंस मैंने यूज किया, वो एक्शंस वो रूल्स आर फ्रॉम दिस एक्शंस एंड रूल्स ओनली। तो भाई, डिड यू अंडरस्टैंड 8 पजल प्रॉब्लम या 8 टाइल प्रॉब्लम? सबको समझा क्या? इजी था या yes, sir. डिफिकल्ट था? Easy था. ठीक है, अभी इसी के ऊपर और 2 प्रॉब्लम्स देखेंगे हम, बट उससे पहले राइट डाउन क्वेश्चन नंबर 1, 8 पजल प्रॉब्लम। जो पर्पल में लिखा है वो तुम्हारा क्वेश्चन है। ठीक है, कभी कभी नोट दिया जाता है या नहीं दिया जाता है। इट इज अंडरस्टूड योर टाइल विल मूव टॉप बॉटम लेफ्ट राइट। अच्छा, एक सेकंड, पहले ये लिखो, सॉरी, पहले ये हेडिंग दो, प्रॉब्लम सॉल्विंग। पहले प्रॉब्लम सॉल्विंग लिखो, उसके चारों स्टेप्स लिख के ले लो, एंड देन यू राइट क्वेश्चन नंबर 1। टेन मिनट्स टू कंप्लीट।
हुआ क्या? Yes. Shall I start with the next problem? Yes, sir. Okay. Take down problem number 2. Problem number 2. Vacuum cleaner problem. Problem number 2, vacuum cleaner problem. अच्छा, यहां पे अगर आप देखोगे तो मेरे पास एक रूम है, रूम ए, और मेरे पास एक रूम है, रूम बी, और मेरे पास ना एक वैक्यूम क्लीनर है। वो वैक्यूम क्लीनर का काम क्या रहता है आपको पता ही है। वैक्यूम क्लीनर का काम है रूम को क्लीन रखना, क्लीन करना। और यहां पे आपको बोला है कि सॉल्व टू क्लीन बोथ द रूम्स। ये बोला है कि सॉल्व टू क्लीन बोथ द रूम्स। अभी यहां पे अगर आप देखोगे ना, सिंपल है, पर पिक्चर थोड़ा क्लियर नहीं है, क्योंकि वी आर नॉट अवेयर अपना इनिशियल स्टेट क्या है, अपना गोल स्टेट क्या है। तो इसके लिए ना मुझे थोड़े इधर स्टेट को डिस्क्राइब करना पड़ेगा, एंड उस स्टेट के डिस्क्रिप्शन से आई विल कम टू स्टेप नंबर 1, दैट इज इनिशियल स्टेट, then I will come to step number 2, that is goal state, then possible set of actions and rules and solution tree. तो अभी मैं आपको बताता हूं कि भाई इफ आई से, मैं यहां पे लिखता हूं सोल्यूशन। स्टेप नंबर 1 इज स्टेट डिस्क्रिप्शन। आप बोलोगे सर पहले वाले केस में आपने स्टेट डिस्क्रिप्शन क्यों नहीं किया? जरूरत ही नहीं था, क्योंकि सीधा इनिशियल स्टेट एंड गोल स्टेट दे दिया था। पर इसमें ना इनिशियल स्टेट दिया है ना गोल स्टेट। तो मैं यहां पे लिखता हूं, ये मेरा, मैं यू कैन सॉल्व यूजिंग योर ओन अप्रोच ऑल्सो, पर मैं यहां पे लिखता हूं अज्यूम। तो मेरा अजम्पशन है, तो मेरा अजम्पशन ये है कि आई एम यूजिंग अ वेरिएबल x whose value is 1, and this indicates I am in room A. X whose value is 2, this indicates I am in room B. ठीक है? Now I assume one more set of things. तो मैं यहां पे वापस लिखता हूं assume. I use one more variable y, which is 3, and this indicates, मैं रिपीट कर रहा हूं, 3, this indicates room A not clean, and y equal to 4 indicates room A clean. सिमिलरली मैं यहां पे और एक अजम्पशन लिखता हूं, यहां पे मैं और एक अजम्पशन लिखता हूं, और वो अजम्पशन है z equal to 5 and z equal to 6, and this indicates room B not clean and room A clean.
नाउ कैन यू टेल मी, क्या आप ये स्टेट डिस्क्रिप्शन को देख के हेल्प कर सकते हो मुझे टू डिराइव इनिशियल स्टेट एंड गोल स्टेट? सर बी आएगा ना? हाँ, इधर भी आएगा, सॉरी, इनिशियल स्टेट एंड गोल स्टेट। ये देखो मेरे पास ना यहाँ पे दो इनिशियल स्टेट हो सकते हैं दोस्तों, दो इनिशियल स्टेट। क्यों दो इनिशियल स्टेट हो सकते हैं? इधर आई एम इन रूम ए and I'll be going to room B, or I am in room B and I'll be coming to room A. तो अज्यूम करो I am in room A, मतलब X, Y and Z। तो मैं यहां पे लिखता हूं X का वैल्यू 1, मतलब I am in room A। मैं यहां पे लिखता हूं रूम A क्लीन नहीं है, मतलब 3, और मैं यहां पे लिखता हूं रूम B भी क्लीन नहीं है, मैं यहां पे लिखता हूं 5। डिड यू अंडरस्टैंड ये गोल स्टेट, ये इनिशियल स्टेट कैसे फॉर्म हुआ? Yes, sir. यस ठीक है, अच्छा, कैन यू टेल मी द इक्विवेलेंट गोल स्टेट x, y, z फॉर दिस? 1, 2 4 ना 6 ना 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 ना, 2 4 सोच के 6 आंसर दो। 1 में 4 हूं मैं 1 को क्लीन करूंगा, मतलब ये 4 बनेगा। डू यू Yes, अग्री? sir. Yes, sir. मैं 1 से b में चले जाऊंगा, मतलब यहाँ पे आएगा 2, 2, 6 और b को क्लीन करूंगा, मतलब यहाँ पे आएगा 6। 6. ये बनेगा मेरा गोल स्टेट। ठीक है, अगर ये नहीं तो कैन यू टेल मी क्या वैल्यूज रहेंगे? अगर ये नहीं है, मतलब देयर इज वन मोर पॉसिबिलिटी। व्हाट इज दैट वन मोर पॉसिबिलिटी? वन मोर पॉसिबिलिटी यहाँ पे क्या हो सकता है कि आई एम राइट नाउ इन रूम बी, इनिशियली आई एम इन रूम बी। ओके, मैं यहाँ पे लिखता हूं 2, रूम बी इज ऑल्सो नॉट क्लीन, रूम ए इज ऑल्सो नॉट क्लीन, बट नाउ आई क्लीन रूम बी तो 5 बनता है 6। आई गो टू रूम ए तो 2 बनता है 1, 1 एंड नाउ आई क्लीन रूम ए तो 3 बनता है 4। तो इधर मुझे जो सोल्यूशन ट्री बनाना है वो फर्स्ट के लिए बनाना है, नहीं तो सेकंड के लिए बनाना है। तो टेल मी, क्या मुझे अभी इनिशियल स्टेट एंड गोल स्टेट समझ में आ गया क्या रहेगा? Yes, यस sir. ठीक है, अच्छा, अपने को स्टेप 1 2 मिल गया। तो अभी आपको तो बात पता है, एक बार ये मिल गया तो अभी अपने को क्या फाइंड करना होता है? एक्शन Decision एंड and rule. परफेक्ट, तो यहाँ पे आएगा स्टेप नंबर 2, एक्शन एंड रूल्स। अरे भाई, एक्शन एंड रूल्स यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे सिर्फ 3 एक्शन एंड रूल्स अपने पास हो सकते हैं, दैट इज सक द डर्ट, मतलब रूम को क्लीन करो। सेकेंड, मूव फ्रॉम ए टू बी, या मूव फ्रॉम, बताओ, B बी to A. टू ए। ठीक है, एंड नाउ यू ओनली टेल मी, अपना नेक्स्ट रूल क्या होता है? सॉल्यूशन ट्री। Solution tree. अपना नेक्स्ट रूल होता है सोल्यूशन ट्री। एक सेकेंड ना, नेक्स्ट रूल है सोल्यूशन ट्री। तो अभी आई स्टार्ट विथ स्टेप नंबर 3। तो स्टेप नंबर 3, सोल्यूशन ट्री। अभी सोल्यूशन ट्री एक मैं बनाऊंगा, क्या आप दूसरा बना सकते हो? आप ट्राई कर सकते हो सेकंड के लिए। मैं यहां पे लिखता हूं इनिशियल स्टेट 1,3,5। इसका क्या मतलब है? कैन यू टेल मी इसका मतलब क्या है? इसका मतलब रूम है ए में है और वो दोनों इन रूम क्लीन नहीं है। रूम ए एंड बोथ rooms
are dirty. Do you agree? Yes, sir. अच्छा, अभी मैं कौन से रूम में हूं? आई एम इन रूम A. आई एम इन रूम ए. अभी यहां पे मैं रूम ए में हूं, तो पहले मैं रूम ए को क्लीन करता हूं. तो कैन यू टेल मी, रूम ए को क्लीन करने के लिए यहाँ पे 3 एक्शन रूल्स है. A1. सो कौन से एक्शन एग्जैक्टली? तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा A1. तो अगर मैंने A1 सिलेक्ट कर दिया तो मेरा कौन सा रूम क्लीन हो गया रे? A. तो 1, कैन 4, आई से 5. ये बनेगा 145. परफेक्ट आंसर. ठीक है, अभी मेरा ए क्लीन हो गया. चलो मुझे बी में जाना है. तो बी में जाना है तो कैन यू टेल मी मेरे पास कौन सा रूल आएगा? A2. परफेक्ट. A2 में ए से बी में चलेगा. तो अभी मैं ए से बी में चले गया 2, तो 4, 5. इधर क्या आएगा? 2,4,5. ठीक है, अभी मैं रूम बी को क्लीन करूंगा. तो रूम बी को A1. क्लीन करूंगा तो मैं आई विल यूज A1. A1. ठीक है, और फाइनली जो मुझे मिलेगा वो क्या रहेगा? 2,4,6. एंड दिस इज माय Goal Goal state. state. गोल स्टेट. सो ये क्या है? इसका मतलब अभी क्या है? इन रूम ए and A is clean, Clean. but B is Dirty. dirty. इसका इंटरप्रिटेशन क्या है? Again. Moved to room B, A2. बराबर, and A is clean, but B is dirty. And can you tell me इसका मतलब क्या है? In room B B, both the and rooms are clean. both rooms are clean. अभी कैन यू टेल मी, आपको जो बनाना है ये है सॉल्यूशन ट्री नंबर 1. विल यू ट्राई सॉल्यूशन ट्री नंबर 2? Yes. Yes, ठीक है, sir. एग्जाम में आपको दोनों करना पड़ेगा. सो राइट डाउन इन योर नोटबुक वैक्यूम क्लीनर प्रॉब्लम. वैक्यूम क्लीनर प्रॉब्लम एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आता है. ठीक है, सो ड्रॉ दिस डायग्राम एंड देन इधर क्वेश्चन दिखा है, सॉल्व टू क्लीन बोथ द रूम.
रूल ये स्टेप नंबर 1 हो गया लिख के. You also complete solution 2. सर आप सोल्यूशन 2 के आंसर्स एक बार बता सकते हो कंफर्म के लिए? Yes. सबका हो गया? Shall I Yes, discuss? sir. Okay. Just a minute. In solution 2, initial state will be 2, 3, 5. Am I right? Yes, sir. Then 2, 3, action 1, 2, 3, 6. Then it will be action 3, making it 1, 3, 6. And then again action 1, making it 1, 4, 6. Clear? I'll start with 2, 4, 6. Sorry, 2, 3, 5. Then it will be 2, 3, 6. Then it will be 1, 3, 6. Then it will be 1, 4, 6. Clear? Am I clear? Yes. Okay. So chalo, last problem of our today's lecture. Write down water jug problem. Give the heading as water jug problem. Water jug problem. Now mark this as very, very, very important.
अभी वाटर जेट प्रॉब्लम क्या बोलता है कि भाई तुम्हारे पास मैं एक स्टेटमेंट दे रहा हूं, वो जरा लिख के ले लो फास्ट. राइट डाउन. देयर आर टू जग्स. There are two jugs of 4 liters and 3 liters respectively. Of 4 liters and 3 liters respectively. Full stop. Initially, इधर ध्यान दो, ये तुम्हारा 3 लीटर का जग है, ठीक है, एंड ये जो है ये तुम्हारा 4 लीटर का जग है. मैं इसको नाम देता हूं जग ए और मैं इसको नाम देता हूं जग बी. यू कैन गिव एनी नेम. दिस इज योर इनिशियल स्टेट. और अगर इनिशियल स्टेट आप अगर देखोगे इस जग में, तो दोनों जग में कुछ भी नहीं है. बट मेरा जो गोल स्टेट है, गोल स्टेट, वो ये कहता है कि ये 3 लीटर वाला और ये 4 लीटर वाला, दिस इज योर 4 लीटर. तो गोल स्टेट ये कहता है दिस इज ए, दिस इज बी. गोल स्टेट ये कहता है कि भाई एंड, मतलब गोल स्टेट में एंड ऑफ द एग्जीक्यूशन मैं चाहता हूं कि जग ए में, मतलब 4 लीटर वाले जग में 2 लीटर पानी हो. मतलब कुछ ऐसा. Two liters of water should be there in jug A. What about jug B? I am not concerned about jug B. So jug B में पानी हो भी सकता है या वो खाली भी हो सकता है. This here it is don't care condition. पानी है नहीं है मुझे फर्क नहीं पड़ता है. एंड में 4 लीटर के जग में 2 लीटर पानी होना चाहिए. ये वाटर जग प्रॉब्लम है. तो इनिशियल स्टेट क्या है बताओ रे. इनिशियल स्टेट Both the jugs are empty. परफेक्ट. एंड व्हाट इज द गोल स्टेट. In jug A, there should be 2 जग liters. ए देयर शुड बी 2 लीटर. जग बी कैन हैव एनीथिंग. आई एम नॉट कंसर्न at as of now about jug A, sorry jug B, that is a jug with 3 liter of capacity. ठीक है. तो अभी ये ड्रॉ कर लो इनिशियल स्टेट गोल स्टेट. हम लोग बहुत आराम से जाएंगे ये सम सॉल्व करने के लिए, इंपॉर्टेंट है.
चलो अभी अपने को इनिशियल स्टेट गोल स्टेट तो दिया हुआ है, बट स्टिल इनिशियल गोल स्टेट को क्लियर करने के लिए मैं यहां पे लिखता हूं सॉल्यूशन। स्टेप नंबर 1, स्टेट डिस्क्रिप्शन। पहले वाले में स्टेट डिस्क्रिप्शन देने की जरूरत नहीं पड़ी, स्ट्रेट फॉरवर्ड इनिशियल गोल स्टेट था। इसमें थोड़ा मुझे लिखना पड़ेगा, तो मैं स्टेट डिस्क्रिप्शन में क्या लिखता हूं, मैं लिखता हूं कि लेट ए रिप्रेजेंट्स जग ए and B represents jug B. So now can you tell me A comma B अगर मैं रिप्रेजेंट करता हूं तो this implies कि 0 should be less than equal to A should be less than equal to 4. Do you agree? Yes, sir. And 0 should be less than equal to B should be less than equal to answer 3. क्यों 3? क्योंकि A का कैपेसिटी 4 है और B का कैपेसिटी 3 है। नाउ फ्रॉम दिस कैन यू टेल मी भाई इनिशियल स्टेट क्या होगा? A, B इनिशियल स्टेट का वैल्यू क्या रहेगा? 0,0 एकदम परफेक्ट। एंड कैन यू टेल मी गोल स्टेट का वैल्यू A, B क्या रहेगा? 2,0. नहीं, why 2,0? Doesn't care. It will be 2, n. Yes, sir. ठीक है, and this n indicates anything, but anything between 0 to 3. Do you agree Yes, sir. that n will be anything between 0 to 3? So did you understand what will be the initial state and goal state, everyone? Can you repeat again? देखो इनिशियल स्टेट क्या कहता है? दोनों खाली है, तो ए क्या इंडिकेट करता है? जग ए। बी क्या इंडिकेट करता है? जग बी। दोनों खाली है, मतलब ए 0 लीटर से भरा है, बी 0 लीटर से भरा है। ये मेरा इनिशियल स्टेट है। गोल स्टेट क्या कहता है? ए विल बी फिल्ड बाय 2 लीटर्स, बट 3 लीटर वाला जो जग है बी, उसमें कुछ भी हो सकता है। इसके लिए मैंने यहाँ पे लिखा कि गोल स्टेट में ए का वैल्यू 2 होना चाहिए, बट बी का वैल्यू कैन बी एनीथिंग, but that anything should be in the range of 0 to 3. तो यहाँ पे मैं B नहीं लिखता हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ N should be in the range of 0 to 3. Why 0 to 3? Because उसका कैपेसिटी ही 3 है। Is this clear? Yes, sir. अच्छा, तो चलो अपने को इनिशियल स्टेट गोल स्टेट तो मिल गया। अभी कैन यू टेल मी व्हाट इज अवर सेकेंड स्टेप जनरली? Action and rules. तो मैं यहाँ पे लिखता हूं एक्शन एंड रूल्स। अभी बहुत सारे पॉसिबल एक्शंस हैं यहाँ पे, बहुत सारे पॉसिबल एक्शंस हैं। तो एवरीवन फिजिकली, मेंटली, वर्चुअली बी प्रेजेंट ओवर हियर। तो मेरा फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे ये है कि चलो मैं कहता हूं फिल जग ए with 4 liter. Can you tell me जग ए को अगर मैंने 4 लीटर से भर दिया तो कैन आई से हियर आई कैन राइट 4, बी। एक सेकेंड, इसको थोड़ा और प्रिसाइजली लिखता हूं मैं। कैन आई राइट दिस एज A, B implies 4, B. Why 4, Yes, B? Because अभी तक B में मैंने कुछ भरा नहीं है। ठीक है, चलो मैं यहाँ पे लिखता हूं fill jug B with 4 liter. तो कैन यू टेल मी मेरा स्टेट क्या बनेगा? A, B will indicate what? Sorry, 3 liter.
इट विल बी a, Comma 3 बराबर ना? yes sir. ओके चलो मेरे पास और पॉसिबल क्या एक्शन हो सकते हैं? ए को एम्प्टी करो, तो मैं यहाँ पे लिखता हूं एम्प्टी जग ए, और मैं यहाँ पे लिखता हूं एम्प्टी जग बी. सो एम्प्टी जग ए मतलब क्या? ए कॉमा बी इंडिकेट्स ए को खाली कर दिया, मतलब 0, बी. डू यू अग्री? Yes. ठीक है Yes, चलो sir. इधर आप बताओ क्या आएगा? A comma 0. a, 0. ठीक है, आपके रेफरेंस के लिए मैं यहाँ पे इसका डायग्रामेटिक वर्जन भी ड्रॉ कर देता हूं. ठीक है, इधर आएगा तुम्हारा जग ए, इधर आएगा जग बी, इधर जग ए को भर दिया. ठीक है, इधर आएगा तुम्हारा जग ए, इधर आएगा जग बी, इधर जग बी को भर दिया. ठीक है, इधर सिचुएशन जग ए को खाली किया, जग बी में क्या था मेरे को पता नहीं, बट आई अज्यूम वो खाली रहेगा. इधर तुम्हारा जग ए है, इधर तुम्हारे जग बी को खाली कर दिया. इज दिस क्लियर? Yes. Yes sir. अच्छा, इसके अलावा क्या हो सकता है? Empty jug A to B या B to A. हाँ ओके परफेक्ट. तो मैं यहाँ पे ऐसा रूल लिख सकता हूं, रूल नंबर 5, ट्रांसफर ऑल वाटर फ्रॉम ए टू बी. ट्रांसफर ऑल वाटर फ्रॉम ए टू बी, या मैं यहाँ पे लिख सकता हूं ट्रांसफर All Water from from B ऑल to A. वाटर B to फ्रॉम बी टू ए. अभी तुम थोड़े होशियार हो मैथमेटिकली, मुझे इसका इंटरप्रिटेशन बताओ क्या आएगा? ए कॉमा बी. ठीक है, व्हेन आई सेड ट्रांसफर ऑल वाटर फ्रॉम ए टू बी, मतलब मुझे ए को फॉर श्योर पूरा खाली करना है. Yes, sir. तो ए को खाली किया तो यहाँ पे क्या मिलेगा? 0. परफेक्ट. 0. अच्छा, अभी बी में ऑलरेडी कुछ है. Yes, sir. ठीक है, तो इधर तो फॉर श्योर बी आएगा, Sir, प्लस plus A. whatever was in A will go in B, so it will be 0, Yes, comma sir. A plus B. But you need to make sure that this will be between. 0 to 3. 3. परफेक्ट आंसर, परफेक्ट आंसर. चलो मुझे अभी इसका इंटरप्रिटेशन तुम बताओ, मुझे बात बताओ, किसको खाली करना है? B को B को तो फॉर श्योर Zero. बी क्या बनेगा? 0. 0. परफेक्ट आंसर. ए में पहले से कुछ है, फॉर एग्जाम्पल ए, उसमें क्या आ जाएगा? B बी. बट यू नीड टू मेक श्योर दैट दिस इज 0 to बिटवीन. 4. एकदम परफेक्ट, 0 to 4. ये 6 फिलहाल आपको समझे क्या? ए को भरो, बी को भरो, ए को खाली करो, बी को खाली करो, या ए को पूरा का पूरा बी में डाल दो. पर अभी आपको इसमें प्रॉब्लम पता है क्या हो रहा है? व्हाट इफ बी में पहले से ही 3 लीटर पानी था, तो आप, और ए में 4 लीटर पानी था. अगर मैंने ए का पूरा पानी बी में डाल दिया, ए तो 0 हो गया, कहना ऐसे बी ओवरफ्लो हो जाएगा. Yes, sir. अरे पर बी ओवरफ्लो हुआ तो भी तुम्हारा ए प्लस बी विल नॉट एक्सीड 3. 3, बिकॉज बी की औकात ही 3 लीटर है. Yes, sir. सिमिलरली यही कहानी रहेगी फ्रॉम बी टू ए. B to A में. पर अभी मेरे पास ऑल 2 रूल्स है जो ये कहते हैं कि ए को बी में इतना खाली करो कि भाई ए फुल हो गया या बी फुल हो गया तो रुक जाओ. समझा मैंने क्या बोला? मैं यहाँ पे लिखता हूं, Yes, देखो sir. आपको इधर समझेगा. मैं यहाँ पे लिखता हूं 7th रूल, ऊपर वाले ही मैं कॉपी करता हूं. देखो, ट्रांसफर ऑल के बदले लिखता हूं सम वाटर फ्रॉम, बताओ कहां से? ए से. B2. इसमें बी में, टिल बी बिकम्स Full. परफेक्ट. अच्छा, इधर वाला स्टेटमेंट जरा तुम बताओ क्या लिखूंगा मैं? ट्रांसफर Some water from सम वाटर
फ्रॉम, बताओ रे, B2A B2A till till A becomes A becomes full. Do you agree? yes. ठीक है, अभी जो मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूं ना, वो सिंपल है, पर ध्यान दिया तो। ठीक है, वो मैथमेटिकल इक्वेशन कैसे लिखना, अभी मुझे आप हेल्प करोगे इक्वेशन लिखने के लिए। इधर ध्यान दो, ऐसा सिनेरियो है, ये है मेरा 4 लीटर, ये है मेरा 3 लीटर। अभी 3 लीटर में 2 लीटर ऑलरेडी है और इधर पूरा 4 लीटर है। समझा मैंने क्या बोला? और मेरा Yes, sir. इक्वेशन है a कॉमा बी, और तुम मुझे ये इक्वेशन कंप्लीट करने के लिए हेल्प करोगे। चलो अभी मुझे बात बताओ, मुझे पानी खाली करना है। तो मुझे पानी खाली करना है, तो मुझे इस 4 लीटर से इसमें कुछ ऐड करना है। कैन यू टेल मी कितना ऐड होगा? 2 1 लीटर। लीटर ऐड होएगा, क्या क्या होगा? 1 लीटर ऐड एक होएगा, ये एक तो ही ओवरफ्लो हो जाए। ठीक है, तो इधर 1 लीटर ऐड हुआ, बराबर ना? तो Yes, यस ये किसका स्टेटस है जो 1 लीटर ऐड हुआ? बी का। B का। और बी फुल करना है मुझे, तो मैं यहां पे लिख देता हूं बी। एंड कैन यू टेल मी बी का वैल्यू अभी क्या रहेगा? 3 3 3। क्यों 3 रहेगा? बिकॉज उसकी मैक्सिमम max capacity कैपेसिटी इज व्हाट? 3 3 3, बराबर। पर मेरे पास ऑलरेडी कितना था रे? 4 4 4 लीटर था। कहने से 4 लीटर मतलब ए, yes, बराबर। उसमें से घटा या उसमें कुछ ऐड हुआ, घटा माइनस मतलब 1 कहना से इधर माइनस। यस अच्छा, अभी मेरे को बात बताओ कितना घटा। तो आप देखो इसका कैपेसिटी कितना था 3 और उसमें ऑलरेडी कितना था, 2 मतलब कहना है से 3 माइनस वाई, सॉरी 3 माइनस बी। यस 3 क्या मैं बोल सकता हूं दिस इज 3 माइनस बी? व्हाट इज बी? 2 अमाउंट ऑफ वाटर एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, पानी डालने के पहले कितना था? 2 2 था। तो मुझे बात बताओ 3 माइनस 2 कितना होता है? 1। 1 तो 1 लीटर जाएगा और 4 में से 1 लीटर गया, तो इधर कितना बचेगा? 3 3 तो liters कहना है से ये इक्वेशन इज satisfying the given case। ठीक है, मुझे बात yes, यस sir. बताओ, ए मतलब 4 लीटर था, बी मतलब 2 3 लीटर का एग्जैक्टली और अभी ये जब ट्रांसफर हुआ तो तुम्हारा जो 3 बी लीटर हो फाइनल है वो 3 लीटर हो गया। ठीक है, चलो ना यू हेल्प मी फॉर द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सेकेंड वन। ये मेरा ए है, ये मेरा बी है, ये 4 लीटर का कैपेसिटी, ये 3 लीटर का कैपेसिटी। इसमें अज्यूम करो 3 लीटर है, इसमें अज्यूम करो से 3 लीटर है। तो अभी मुझे मैक्स टू मैक्स ये यहां से मूव करना है और मुझे यहाँ पे 1 लीटर डालना है। तो अभी कैन यू हेल्प मी टू गेट द इक्वेशन ए कॉमा बी? मैथमेटिकली डायग्राम देख के बोलते जाओ। A इधर फॉर श्योर ए आएगा। A एक सेकेंड ना, from ये किधर चले गया? एक सेकेंड, सम इशू इट सिम्स। हाँ, अरे
एनीवे ठीक है, ये मैं वापस यहाँ पे लिखता हूँ। ए कॉमा बी का इंटरप्रिटेशन क्या था? फॉर श्योर इधर बी रहेगा और इधर ए माइनस 3 माइनस बी रहेगा, यही Yes, बताया था sir. ना। एंड अपने एग्जाम्पल के हिसाब से इधर फाइनली बी का वैल्यू होगा 3, इनिशियली बी का वैल्यू था 2 2. और ए का वैल्यू था 4। चलो सिमिलरली मुझे जरा अभी यहाँ पे हेल्प करो, चलो बताओ इधर क्या होगा? A. इधर फॉर श्योर ए रहेगा Yes, sir. क्योंकि ए में ऐड होने वाला है और ऐड होने के बाद ए में फाइनल वैल्यू जो रहेगा वो क्या रहने वाला है? 4। और ठीक है, चलो मुझे बात बताओ, बी से घटने वाला है Yes, sir. yes, तो बी से B घटने वाला है तो बी माइनस। minus अरे कितना घटेगा? तो ए का A. टोटल कैपेसिटी 4 minus माइनस ए। A. A. और इनिशियली यहाँ पे आप लिखोगे बी कितना था? 3 3. और ए कितना था? 3। 3. ये तुम्हारे अंडरस्टैंडिंग के लिए लिखा है, सो प्लीज डोंट गेट कंफ्यूज कि हर वक्त 3 रहेगा क्या। इट इज नॉट नेसेसरी हर वक्त 3 रहेगा, दिस इज ओनली फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। एम आई क्लियर? Yes, sir. ठीक है, तो ये मेरे पॉसिबल 8 एक्शन रूल्स बन गए। तो डिड यू अंडरस्टैंड फर्स्ट 2 स्टेप्स फॉर अ टाइम बिंग? Yes. ठीक है, चलो ये पहले इतना कंप्लीट करो, या लेट अस कंप्लीट, एक सेकेंड, हम लोग पूरा कंप्लीट ही कर लेते हैं अभी। लेट अस कंप्लीट विथ आवर स्टेप नंबर 3। क्विकली टेल मी व्हाट इज आवर स्टेप नंबर 3? Solution tree. Solution tree. चलो everyone please help me for solution tree. What is my initial state? Initial state A comma 0, B 0 0, 0, 0. 0. बराबर। अच्छा 0, 0 मैं एक काम करता हूं, जग बी को पूरा भर देता हूं। लेफ्ट Yes, वाला sir. ए है, राइट वाला बी है। अगर मैंने ये कर दिया तो कहने से ये बनेगा 0,3। Yes, sir. ठीक है, अभी मैं क्या करता हूं, ये पूरा 3 जो है ना, A में पूरा खाली का करेंगे. पूरा खाली कर देता हूं ए में। Yes, sir. तो इधर क्या होगा? 3, 0. पूरा खाली कर दिया। Yes. अभी मैं वापस जग अभी बी तो को B फुल को भर full देता हूं, करेंगे. तो कितना होगा? 3, 3. 3,3 बराबर। चलो मेरे को एक बात बताओ, ये 3,3 सब छोड़ो, अपना मेन एम क्या है? ए में क्या होना चाहिए? 2. 2. 2। बी में जो कुछ भी है Anything. भाड़ पे जाने दो, अपने को पर- ए पे फोकस करना है। ए पे क्या लेके आना है? 2. 2. अच्छा अभी मुझे बात बताओ, ए पे 2 लाने के लिए मैं काम करता हूं, बी को ए में इतना खाली कर देता हूं कि Overflow बी ना फुल हो. हो गया कि रुक जाओ। तो कैन यू टेल मी ऐसा सिचुएशन क्या रहेगा? बी फुल हो गया 4 और इधर कितना हो जाएगा? 2, क्योंकि इधर Yes, से sir. 1 लीटर यहां चले जाएगा तो Yes, ए बन sir. जाएगा 4 और बी में रहेगा 2। 2. चलो मैं एक काम बोलता हूं, ए को खाली करो, खाली कर दो और B को फिर भर दो. 0,2। Yes, sir. और अब ये काम करो, बी को ए में लेके जाओ, ट्रांसफर तो इधर आएगा 2, 0. 0. अरे वो बी में क्या है, आई एम नॉट कंसर्न। ए में Yes, sir. 2 आ गया, आई हैव रीच माय Goal गोल। गोल state. स्टेट. ठीक है, तो चलो मुझे जरा ये यहाँ पे थोड़ा सा ये देख के मुझे जरा क्लियरली बताओ। एक सेकेंड, इसको थोड़ा सा मैं नीचे लेके आता हूं। ये जरा रूल्स देख के मुझे बात बताओ। पहले मैंने बी को भर दिया, मतलब मैंने कौन सा रूल यूज किया रहेगा? बी को भरा मतलब 2. तो R2 लिखना है। ठीक है, उसके बाद मैंने पूरे बी को ए में खाली कर दिया, R4. पूरे बी को ए में खाली कर दिया। R6 ना, R6. Yes, sir. R4 क्या आएगा? जब बी को पूरा फेंक पानी दो. फेंक दिया, मैंने Yes, पूरा sir. पानी ए में डाल दिया। अभी मैं वापस जग बी को भरता हूं, मतलब वापस रूल 2 आएगा। Rule. Yes, sir. अभी मैं जग बी को इस तरह से जग ए में डालता हूं कि जग ए फुल हो गया तो रुक जा भाई,
तो ये है मेरा रूल R8. नंबर। R8. 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 परफेक्ट। अभी मैं पूरे जग ए को खाली कर देता हूँ, R3. R3, R3. एंड मैं जग बी को ए में पूरा डाल देता हूँ, R6. R6. And this is how we reach the goal state. Is this clear, everyone? Yes, sir. Yes, sir. Any doubt with this? No. ठीक है, चलो, everyone, you have to write this. For sure comes for 10 marks. Write down water jug problem. आपने ऑलरेडी कुछ स्टेटमेंट लिखा रहेगा, इनिशियल स्टेट, गोल स्टेट बनाओ, स्टेट डिस्क्रिप्शन लिखो। इतना लिख के होने के बाद आई विल स्क्रॉल डाउन। किसी को कुछ भी डाउट है क्लियर कर लो, इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है ये। So scroll down.
अच्छा, डिड यू कंप्लीट एवरीवन? हो गया सबका? यस सर। किसी को कुछ डाउट है? सर इसमें कितने सॉल्यूशन ट्री बनेंगे? बहुत सारे बन सकते हैं ना? यू कैन हैव मल्टीपल सॉल्यूशन ट्री, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से बन सकते हैं. एग्जाम्पल ही लिख रहे हैं ना? You can also have your own set of solution tree, but this is generally what we follow because हर वक्त जो क्वेश्चन आता है तो यही क्वेश्चन रहता है. But you can have your own solution tree with some permutation and combination. रट्टा मारने की जरूरत नहीं है. ओके सर. ठीक है. So now we'll meet as per our schedule next Friday at 6:30 for AI. Next week I'll be starting with searching algorithms, and Thursday we'll meet as per schedule for CSS. So everyone till then take care, stay safe. Good night everyone. I'll be the last person to leave. अगर doubt नहीं है you can start leaving one by one. अच्छा, before that समझा ना आज का lecture? Yes, sir. Okay. Shall we conclude? Okay, Vaibhav. Yes, sir. Bye, Mandar. We can conclude, Vaibhav. Thank you. Okay, thank you, Thank sir. you, Shreyas. Bye, sir. Bye, Mandar. Bye, Vaibhav. Good night. Thank you.